Okay, so in order to add your solver in your Excel, you have to go to File, File. There you will find Options. Select Options. Then this dialog box will open. Here you have to select Add-ins. Okay, after selecting this add-in, you have to select Manage May under this Excel add-ins, because this is an add-on feature in the Excel. So we have to add it manually. So here select Excel add-ins and then select Go, and here you will get these options. So you have to check this particular thing, that solver add-in. So just click on that, you will get a check sign and then click OK. After that, just cross check in your data tab, solver should be here. So is it done for everyone? Yes, ma'am. Okay. After this is done, now we'll come to our questions. So this is first practice question. We have to maximize. This is our objective and these are our constraints. Okay. So first of all, you have to identify your decision variables, right? Decision variables are your x1 and x2. So in your Excel file, just write in the columns your products. Now, whatever your decision variables, so x1, x2. Then you have to write your constraints. So make sure that since you are working on Excel, every number should be in a separate cell. So for first equation, your equation is x1 plus x2 is equals to 5. So constraint 1. This is your first constraint, and the equation is x1 plus x2 equals to 5. So just write 1, 1. Okay, and here write the right hand side values of your equations. Okay, these are equations, right hand side values. They are also indicate the availability, whether it is minimum or it is maximum. So you can write in this way only, that right hand side values of your equations. So for the first equation, it is x1 plus x2 is equals to 5. So just write 5. Right now we are just entering the values of our constraints. ओके अभी ये बीच वाला कॉलम छोड़ देना, इस इक्वेशन के बीच में बस अभी एक कॉलम रहता है. देन फॉर नेक्स्ट कॉन्स्ट्रेंट, the equation is x1 is greater than or equals to 0. So abhi forget the sign. The value of coefficient of x1 is just 1, so put 1 here. There is no x2, so 0. And right hand side value of the equation is 2, so just write 2. So in every cell there is a number. Okay, then next equation, x2 is less than or equals to 4. So this is your constraint 3. There is no x1, so 0. x2 coefficient is 1 and it is less than or equals to 4, so write just 4. Okay, so this is the first step. You have to do this for all your questions. Okay, so that first column will be the constraint. The other columns will be your decision variables. After that, you have to leave one column. Then you have to enter the right hand side values of your equations. Clear hai yahan tak? Yes, ma'am. Beta, just do along with me, okay? Then we have to find the values of x1 and x2. So for units which we have to find out, we have to put 0 and 0 for the time being. Okay, we have to find these two values. So I'm putting 0 for the time being. ठीक है कि अभी 0 के अकॉर्डिंगली मैं अपना पूरा टेबल सेट कर रही हूँ. उसके बाद मैं सॉल्वर यूज करूंगी जिससे मुझे एक्सेल बताएगा कि आपका x1 इतना होना चाहिए, x2 इतना होना चाहिए. सो फॉर द टाइम बिंग आप 0 0 डाल दिया. इसके बाद यहाँ पे यू हैव टू यूज द प्रोडक्ट which actually tell you
the resources used. Okay, so this is basically to calculate how much resources you have used. Okay, so how will you calculate them? This is for constraint 1. So just understand what I am doing. I am saying x1 का कोफिशिएंट जो भी है आपका उसको मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ यूनिट से, प्लस जो भी आपका x2 का कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करो विद नंबर ऑफ यूनिट्स. जो भी आंसर आएगा वो आपका जो आंसर आएगा वो आपको बताएगा दैट दिस मच रिसोर्सेज यू हैव कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स. जैसे कॉन्स्ट्रेंट 1 कुड बी योर लेबर, इट कुड बी योर मशीन, इट कुड बी एनीथिंग. सो ये टोटलिटी में बताएगा कि आपका टोटल वो पर्टिकुलर कॉन्स्ट्रेंट या जो मैम ये वाला पॉइंट फिर से है. जैसे फॉर एग्जांपल योर कॉन्स्ट्रेंट 1 वुड बी योर लेबर. ओके, लेबर आवर्स इज योर फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट. ओके, एंड सपोज लेबर आवर में वो ये कह रहा है कि एक प्रोडक्ट x1 का बनाने के लिए 1 आवर लग रहा है, राइट? कोफिशिएंट वही डिस्क्राइब करता है ना कि जितनी भी यूनिट्स हैं x1 की उसका एक यूनिट में कितना कोफिशिएंट वही बताता है. सो इस टाइम पे मैं लेबर बता रही हूँ कि लेबर कितना यूज हुआ है. तो वो कैसे पता चलेगा कितना यूज हुआ है? जो x1 का कोफिशिएंट है प्लस जो x1 की एक्चुअल में यूनिट्स है प्लस जो x2 का कोफिशिएंट है और x2 की कितनी यूनिट्स है, ये दोनों यूनिट हम निकाल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है आपकी, ठीक है, एक कंपनी है और अब भी मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि लेबर कितना यूज हो रहा है. ठीक है, सो लेबर के रिस्पेक्टिव में मैंने जो उसके कोफिशिएंट्स थे प्रोडक्ट वाइज उनको मल्टीप्लाई किया विद द यूनिट्स, विद देयर रिस्पेक्टिव यूनिट्स. अभी तो जीरो आएगा बिकॉज वी हैव मैन्युअली एंटर्ड जीरो हियर, बट जब सॉल्वर करेगा तो सॉल्वर अपने आप वैल्यूज दे देगा आपको. ठीक है, फॉर नेक्स्ट कॉन्स्ट्रेंट फॉर एग्जांपल इट इज योर मशीन आवर्स. ठीक है, सो मशीन आवर्स के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज होगा. दिस जो भी उसका कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स x1 के, देन x2 का क्या कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई विद x2 की एक्चुअल यूनिट्स 0. Why I have written this product sum formula? क्योंकि in Excel you have directly sum product formula. जो आपका sum product formula होता है वो यही करता है. एक्चुअल में जो अभी हम मैन्युअली कर रहे हैं उसमें हम एरेज सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज हैं, इन दोनों को रिस्पेक्टिव इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है. तो उसमें क्या है, आपको इंडिविजुअली नहीं सिलेक्ट करना, यू हैव टू डायरेक्टली यूज दिस सम प्रोडक्ट फॉर्मूला, जिससे जो ये एरे और ये एरे जो हमने सिलेक्ट किया उसका एक्सेल में मतलब ही यही है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस अगर कोई और है तो उसको इससे करो. सो इसलिए वी कैन डायरेक्टली यूज द सम प्रोडक्ट. मैम इसमें हम लोग वो यूनिट्स वाला फिक्स करके भी कर सकते हैं ना, ड्रैग करके. यस 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 डेफिनेटली. अगर जैसे मैं यहाँ पे कर दूं वो सबसे एफिशिएंट है. आपने सम प्रोडक्ट यूज किया, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट एरे है उसको तो आप नॉर्मल रख रहे हो क्योंकि ये आपका जब आप ड्रैग करोगे नीचे सेल्स तो आपके एरे शिफ्ट होने चाहिए, बट आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स आर फिक्स्ड. सो यू कैन सिंपली सिलेक्ट F4, यू कैन प्रेस F4 या फिर फंक्शन F4 प्रेस करो जिससे अपने आप डॉलर साइन आ जाएंगे. नाउ माय दिस पर्टिकुलर एरे इज फिक्स्ड, देन क्लोज योर ब्रैकेट्स एंड देन यू कैन डायरेक्टली ड्रैग दिस फॉर्मूला. ठीक है, सो उससे वो अपने आप आपका इस वाले का ये वाला सिलेक्ट हो गया है, नेक्स्ट वाले का ये हो गया. और ऑलवेज मेक अ हैबिट ऑफ व्हेनेवर यू आर यूजिंग अ डॉलर साइन वाला फॉर्मूला, सो ऑलवेज प्रेस F2. ठीक है, एक बारी रैंडमली F2 प्रेस करके आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ मैंने जो ड्रैग किया है वो रैंडमली ठीक चल रहा है, तो मतलब सही है मेरा फॉर्मूला. ठीक है, तो F2 प्रेस कर लिया करो. नाउ दिस इज डन. F2 अगर काफी बार लैपटॉप्स में डायरेक्ट F2 नहीं प्रेस होता तो फंक्शन F2. ठीक है, इससे आपका फॉर्मूला दिखा देगा आपको कि प्रॉपर क्या क्या आपके सेल सिलेक्टेड है. अच्छा ठीक है. Then right hand side values लिख दी. Now we have to write our objective. So your objective is maximize. Okay, so this is your, it could be anything. So for the timing I am writing profit maximization. So profit maximization है जो आपका ऑब्जेक्टिव था, एक ना रो यहाँ पे ऐड कर दो, सॉरी
कॉन्स्ट्रेंट से पहले जस्ट ऐड अ रो, ठीक है, राइट क्लिक करके भी इंसर्ट रो कर सकते हो, नहीं तो सिलेक्ट दैट एंटायर रो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, एक रो ऐड कर दो, यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव लिख दो, क्योंकि हमें अपने ऑब्जेक्टिव के कोफिशिएंट्स भी डालने हैं। नहीं तो इस पूरी रो को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, यहाँ पे आपका इंसर्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है, जिससे एक रो आ जाएगी। सबकी एडेड है। कॉन्स्ट्रेंट से पहले जस्ट राइट योर ऑब्जेक्टिव एंड look at your objective. It is 10 for x1 and 12 for x2. So this is your objective coefficients. So that means जो भी मेरी यूनिट्स होंगी उसके अकॉर्डिंगली आई कैन यूज दिस सम प्रोडक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट माय टोटल प्रॉफिट. सो दिस इज माय फर्स्ट एरे, माय प्रॉफिट कोफिशिएंट्स विथ द नंबर ऑफ यूनिट्स. ये क्लियर है सबको क्या किया हमने? जैसे हमने मैम एक बार फिर से बताती हूँ, एक सेकेंड. जो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, हमें ये बताना है कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना होगा. ओके, टोटल प्रॉफिट मुझे कैसे पता चलेगा? इसमें मुझे पता हुआ है, इस क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है कि x1 हर यूनिट 10 रुपीज का प्रॉफिट देती है कंपनी को, और x2 की जो यूनिट्स है वो 12 रुपीज पर यूनिट मुझे प्रॉफिट देती है. सो अगर मुझे टोटल निकालना है तो टोटल कैसे निकालूंगी? 10 इंटू जो भी मेरी x1 की यूनिट्स होंगी प्लस 12 जो भी मेरी x2 की यूनिट्स होंगी. सो ये बोल रहा है कि ये एरे मल्टीप्लाई बाय दिस एरे, सो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस. अभी इट इज 0, इसलिए वैल्यू 0 आ रही है. हमने यहाँ पे सम प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज किया है जो हमने रिसोर्सेज. अच्छा, तो मैम ये जो हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला जो ये 0 आ रहा है यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव और यूनिट्स का सम प्रोडक्ट किया है. राइट राइट. ओके हम ओके. सिर्फ यूनिट्स में 0 डालेंगे, इसके अलावा हम हर एक जगह फॉर्मूला लगाएंगे. उसका एक रीजन है, क्योंकि व्हेन वी विल यूज सॉल्वर, सो सॉल्वर सबसे पहले ये पूछता है कि कौन सी वैल्यूज चेंज करनी है. सो चेंज में हम बता रहे हैं कि हमें यूनिट्स चेंज करने हैं, क्योंकि हमें यूनिट्स निकालने हैं विच आर ऑप्टिमम वैल्यूज, और उसके अकॉर्डिंगली ये अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे, क्योंकि सारा जो जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आपके इस 0 से इंटरकनेक्टेड है. राइट, ये भी इंटरकनेक्टेड है, ये भी इंटरकनेक्टेड और ये भी. तो हमें सिर्फ मैन्युअली यहाँ पे 0 डालना है, इसके अलावा सब कुछ आपका फॉर्मूला है. सबका ये टेबल कंप्लीट हो गया है. मैम जो हमने प्रोडक्ट सम वाला रिसोर्सेज यूज वाला ये 0 निकाला था, इसमें विदाउट डॉलर 0 ही आ रहा है. विदाउट डॉलर बेटा वो इसलिए 0 आ रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे ब्लैंक है ना सेल्स, तो अपने आप एक्सेल ना इसको 0 अज्यूम कर रहा है. बट जब आप सॉल्वर लगाओगे ना, देन इट विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर यू. अभी क्योंकि जब हम सॉल्वर लगाएंगे और जब हम कॉन्स्ट्रेंट्स डालेंगे ना, तो हम ये वैल्यूज डालेंगे, उसमें ये 0 आ रहा है, तो आपका सॉल्वर आंसर नहीं देगा. एक बार करके देखना. आपका जो नंबर ऑफ यूनिट्स है ना वो फिक्स्ड है. अगर आप फिक्स नहीं करोगे तो सॉल्वर विल नॉट गिव यू आंसर. इट मींस यू हैव मेड एन एरर. Okay, so just take me a let me take a snip for this particular question, otherwise बार बार ना हमें PPT पे जाना पड़ रहा है. So this is my question. Now what I am doing, I am going to data solver. Okay, मेरा solver का dialog box खुल गया. ठीक है, उसके बाद it is yes. Just go to data and solver. मैम एक बार ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला रह गया, एक बार वो कर लेते हैं. अच्छा कर लो, मैं बताऊं एक बारी. यस मैम. यहाँ पे जैसे मैंने रिसोर्सेज यूज्ड वाला फॉर्मूला यूज किया है ना, वही मैंने यहाँ पे किया है. अगर आपको सम प्रोडक्ट नहीं लगाना तो आप डायरेक्टली इक्वल्स टू ये वाला डाल दो, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है ना, यहाँ पे मैं अपने ऑब्जेक्टिव की वैल्यू निकाल रही हूँ.
कि मेरा टोटल प्रॉफिट कितना बनेगा। सो जो भी मेरा कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ यूनिट से, प्लस जो मेरा दूसरा प्रोडक्ट है उसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ यूनिट्स, एंटर। यूज किया। आप चाहो, अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है सम प्रोडक्ट से तो डोंट यूज इट। मैम एक बार प्रोडक्ट सम वाले में और बता दो, रिसोर्स यूज वाले, डॉलर साइन वाला। अच्छा, डॉलर साइन वाला, यहाँ पे मैंने क्या किया है, आई हैव यूज्ड सम प्रोडक्ट। हमेशा whenever you are using an Excel formula, always check the syntax. It is asking for array 1. array 1 क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव के कोफिशिएंट्स, ये मेरा फर्स्ट एरे है, कॉमा, कॉमा के बाद है array 2. array 2 is my units which I know are going to fix. This units are going to be fixed whenever I have to move my cell to a lower cell. अब मैं इस फॉर्मूला को नीचे कॉपी करूंगी तो मैं नहीं चाहती कि मेरे यूनिट्स वाले सेल नीचे कॉपी हो, क्योंकि वो गलत है, राइट? मेरी चीज इससे लिंक्ड है। सॉल्वर जो भी ऑप्टिमम वैल्यूज देगा वो इस सेल से देगा, तो आई वांट टू फिक्स दीज सेल्स। सो ये एरे मेरा फिक्स है, इस वजह से आई एम प्रेसिंग F4 सो दैट डॉलर्स आर बीइंग एडेड हियर। कॉलम के आगे भी डॉलर लग गया, रो के आगे भी डॉलर लग गया। अब मैं इस फॉर्मूले को कहीं पे भी ड्रैग कर लूं, मेरा ये एरे चेंज नहीं होगा। Close. Now this array is going to remain flexible. So when I move down from this cell to this cell, the array will shift. Sorry, this is wrong. This is not this array. This is the second constraint का कर रहे हैं ना. Units are fixed and this is constraint. मैंने गलती से objective select कर लिया था. Now when I move from this cell to this cell, तो अपने आप मेरा एरे ना यहाँ से नीचे फिक्स शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉलर साइन नहीं लगाया, मैं इनको फिक्स नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंने यूनिट्स को फिक्स किया। सो इस फॉर्मूले के बाद जब मैं इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करती हूँ, तो अब देखो ये जो दूसरा फॉर्मूला था उसने ऑटोमेटिकली दूसरे एरे को सिलेक्ट कर लिया है, बट मेरा यूनिट्स वाला नीचे शिफ्ट नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ डॉलर लगा दिए थे। दूसरे वाले फॉर्मूला में भी मेरी यहाँ इस एरे से दूसरे वाले एरे में आ गया, शिफ्ट हो गया, बट मेरे यूनिट्स नहीं चेंज हुए। मुझे मेरे यूनिट्स चेंज करने भी नहीं है, क्योंकि सारे कॉन्स्ट्रेंट्स का अगर मैं रिसोर्स यूज कर रही हूँ तो वो नंबर ऑफ यूनिट से आएगा। अब अगर सपोज मुझे एक बच्चे ने ये बोला कि मैम बिना डॉलर लगाए भी 0 आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ भी ब्लैंक्स है। अगर यहीं पे कोई रैंडम वैल्यू होती ना तो फिर वैल्यूज आ जाती, आपकी कुछ भी वैल्यूज आ जाती अगर मैं डॉलर नहीं लगाती यहाँ पे। अभी ब्लैंक है, सिर्फ इस वजह से 0 आ रहा है, बट आपका सॉल्वर नहीं काम करेगा क्योंकि सॉल्वर एक्सेल है। देखो एक मशीन है ये, इस मशीन को मुझे सब कुछ समझाना पड़ेगा, ठीक है? समझाने के लिए मुझे हर चीज फिक्स रखनी पड़ती है। मैं उसको बता रही हूँ कि मेरी ये वैल्यूज है जो मुझे चेंज करनी है, जिससे मेरा पूरा आंसर निकलना चाहिए, राइट? सो मैं सब कुछ इसी से लिंक करूंगी ना, इस यूनिट से। हर फॉर्मूले को मैं इससे लिंक करूंगी सो दैट एक्सेल को पता है कि ये पर्टिकुलर चीज जो मुझे चेंज करनी है इसका इफेक्ट्स कहाँ कहाँ पे है, राइट? इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Okay, now we'll shift to data solver. This is the box. So the first thing it is asking is set objective. So मेरा ऑब्जेक्टिव कहाँ है? इस पूरे टेबल में मेरा ऑब्जेक्टिव कहाँ है? इस सेल में है, राइट? इस सेल में मेरा ऑब्जेक्टिव है, सो सिलेक्ट सेल। एंड अब देखो इस सेल में अगर आप देखोगे तो हमने फॉर्मूला यूज किया था, दिस सम प्रोडक्ट किया था दिस एरे विद दिस एरे। अब इसमें एक्सेल को पता है कि ये सेल पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर एरे और इस एरे से इंटरलिंक्ड है, राइट? हम एक्सेल को बता रहे हैं। देन ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन। सो यहाँ पे सबका टिक होना चाहिए मैक्सिमाइजेशन। अगर किसी का मिनिमाइजेशन है तो मैक्सिमम पे क्लिक कर दो। अब ये पूछ रहा है कौन सी वैल्यूज आपको चेंज करनी है। सो डेफिनेटली आई वांट टू चेंज दीज टू वैल्यूज, सो सिलेक्ट दीज टू वैल्यूज।
ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आपको सिलेक्ट करनी है क्योंकि आप एक्सेल को बता रहे हो कि ये वैल्यूज मेरी चेंज होनी चाहिए, ये मेरी फाइनल वैल्यूज नहीं है, मुझे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. So I have selected these two values under this particular thing by changing variable cells. Now it is asking for subject to the constraints. Okay, now I have to add the constraints. So for this you have to select add. So add के बाद ये आपका dialog box आएगा. पहले पूछ रहा है cell reference. So cell reference ये हमारा, क्योंकि इससे हमने क्या निकाला था, इससे हमने निकाला था कि constraint 1 की कितनी resources यूज हो रही हैं, और इसमें हम एक्सेल को बता रहे हैं कि इसमें ये नंबर ऑफ यूनिट जो हम चेंज करने वाले हैं इसका रोल है. क्योंकि अगर ये आप जब निकालोगे, जो भी आप वैल्यू निकालोगे ना, यहाँ पे मेरी वैल्यूज आ जाएंगी अपने आप. तो आप एक्सेल को बता रहे हो कि मेरा जो कॉन्स्ट्रेंट रिसोर्स यूज्ड है, जो भी आपका साइन होगा राइट हैंड साइड वाले इक्वेशंस का, वो पुट करके एक्सेल को पता होगा कि ये वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यूज के बराबर होनी चाहिए. राइट, आप एक्सेल को कॉन्स्ट्रेंट के फॉर्म में बता रहे हो. सो मैंने अपना फर्स्ट सेल सेलेक्ट किया. फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5. सो ये जो मेरा सेल है ये बराबर होना चाहिए मेरे कॉन्स्ट्रेंट की वैल्यू से. मतलब एक्सेल को ऐसी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी जो इक्वल्स टू 5 आनी चाहिए. एक्सेल को अब हम फीड कर रहे हैं कि आप ऐसा कॉम्बिनेशन निकालो इन यूनिट्स का कि यहाँ पे मेरा रिसोर्स यूज्ड 5 आना चाहिए, क्योंकि मैं इक्वल्स टू कंडीशन लगा रही हूँ. राइट, सो मैंने अपना फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट डाला है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये सेल पति सेल बेटा योर वॉइस इज ब्रेकिंग. मैम सेल रेफरेंस वाला बता दो. जो ये सेल रेफरेंस है, दिस इज बेसिकली योर फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट का रिसोर्स यूज्ड, क्योंकि ये पूरा टोटल है. अगर मैं पहले वाले की बात बताऊं, लेबर, तो लेबर कितना टोटल में यूज होगा, ये चीज कैलकुलेट कर रहा है कि लेबर कितना यूज होगा. रिसोर्स यूज्ड का कॉलम है ये. सो इतना होगा. राइट, और मेरी इक्वेशन क्या बोल रही है, इक्वल्स टू 5. मतलब x1 x2 की वो वैल्यूज आनी चाहिए. मैं अपने रिसोर्स यूज से बोल रही हूँ कि जो भी लेबर मेरा टोटल यूज हो रहा है, इट शुड बी इक्वल्स टू 5. तो ऐसा यूनिट्स का कॉम्बिनेशन बताओ. वो हम एक्सेल को बोल रहे हैं, अभी हम रेफरेंसेस कर रहे हैं जिससे एक्सेल को पता चल रहा है कि x1 प्लस x2 शुड बी इक्वल्स टू 5. इसलिए मैंने रिसोर्स यूज फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट का यूज किया, मैंने साइन इक्वल्स टू लगाया, और मेरी वैल्यू क्या थी, राइट हैंड साइड वैल्यू 5. सो मैंने इसको 5 से सिलेक्ट कर लिया. राइट, दिस इज E5 एंड दिस इज D5. ओके, देन यू हैव टू क्लिक ऐड. मेरा फर्स्ट इक्वेशन एडेड है. अब दूसरा कॉन्स्ट्रेंट, x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2. सो मेरी जो सेकंड कॉन्स्ट्रेंट है उसका सेल रेफरेंस है ये. दिस इज फॉर सेकंड. नाउ मेरी कॉन्स्ट्रेंट है ग्रेटर देन इक्वल्स टू. सो यहाँ पे यू हैव टू सिलेक्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू कॉन्स्ट्रेंट वैल्यू. सो कॉन्स्ट्रेंट वैल्यू इज दिस. Similarly, you have to follow the process for third equation. Okay, so select add here, then cell referencing. अभी देख लो फिर प्रैक्टिस कर लेना. It is less than or equals to cell referencing 4. Add. So in a way you have to tell each and every cell to the Excel. You will not write anything manually. Okay, you are giving a cell referencing to the Excel. Now when you select OK, you will see all your constraints equations here. So first equation is of equality type, second greater than equal to, third less than equals to. Is this clear? Yes, ma'am. Because we have used the simple resource used wale values, and we have put a sign in between, and then we have put the right hand side values. These are our constraint values, right? So हमारा इस तरीके से subject to constraints आना चाहिए. Then you can check this particular box that make unconstrained variables non-negative, right? हमारी non-negativity restriction is completed. Here it is asking for selecting a solving method. So here select simplex LP. Okay, simplex LP you have to select.
मैम ये जो लिखा है मेक अनकॉन्स्ट्रेंट वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव, इसका क्या मतलब है मैम? Yeah, this is simple. Your non-negativity restriction that Last whatever your values are there, it should be at ओके least ओके, greater than or यस equals मैम. to. So इसको टिक कर देना. वैसे by default also it is always ticked, but अगर नहीं है तो just tick it. Okay, then simplex LP solve. So when you solve it, it is asking that keep solver solution या restore original values. So here you can select keep solver solution. Okay. Now see, the Excel has solved this particular question. It is saying that X1 should be produced 2 units, X2 should be produced 3 units, and total should be 56. क्योंकि देखो आपको अगर आप इक्वेशंस का मतलब देखो, लेबर आवर्स आपके पास 5 है और वो कह रहा है कि एग्जैक्टली 5 आवर्स यूज होने चाहिए. ठीक है, तो ये 5 इक्वल्स टू 5 आ गया. दूसरा आपका कह रहा है कि जो आपकी X1 जो भी आपका कॉन्स्ट्रेंट है मशीन, वो मशीन 2 आवर्स से ज्यादा यूज होनी चाहिए. तो अब यहाँ पे 2 आ रही है विच इज फाइन. थर्ड X2 it could be your any variable, for example it is your overhead expenses, कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है. वो कह रहा है ओवर फॉर एग्जाम्पल ओवरहेड एक्सपेंसेस 4 रुपीज से कम होने चाहिए या 4 करोड़ से, कुछ भी हो सकता है. So now it is coming out 3 which is less than 4. So all my equations are satisfied. So this is my solution, that the company should produce 2 units of X1, 3 units of X2, and the total profit will be 56. Should we move to next question? yes मैम. मैम Yes. पूछो किसको क्या पूछना है. मैम ये जो फॉर्मेट है इसका सॉल्वर को सॉल्व करने का, ये हाँ. हमेशा रहेगा या फिर चेंज होगा? ये जो आपके जो सॉल्वर को स्टेप्स हैं वो भी सेम रहेंगे और आपका ये टेबल भी सेम रहेगा. ओके. इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन. Let's solve this question first. Okay, this is our second question. I am copying pasting this entire format. You can also copy paste it. And now I am just deleting the values here. ठीक है. So तुम भी पूरा paste कर लो, copy paste. But in this case, there are 3 decision variables, X1, X2, and X3. So we need 3 columns for the decision variables. So I am just adding just one more column. So insert one more column, which is X3. Okay, this will remain same. Resource used. Now check for the constraints. How many constraints are there? 1, 2, 3, 4, 5. So there are 5 constraints. So I have to add 5 rows in between. So add 5 rows and make it constraint 4 and constraint 5. ठीक है, ये पर्टिकुलर जो हमारा फॉर्मेट सेम है, इसमें हमने बस डिसीजन वेरिएबल, सिंस दे हैव 3 decision variables, so I have added one more column, and it has more constraints, so I have added 2 more rows. This is done. Yes. So units, we know that we have to manually enter 0, 0, 0. Right? Units हमें निकालनी है अपनी. Objective. Objective for X1 it is 200, for X2 it is 150, and for X3 it is 120. Right? So हमने values डाल दी अपनी objective की. Now subject to constraint. So constraint 1.
It is 5, 4, 3. And right hand side value is 500. So this is my first constraint. Okay. Next constraint, 1, 1, 1, 100. Okay. Next, there is only one x1, so 1, 0, 0, 50. For the next constraint, there is only x2, so 0, 1, 0, 50. For the next equation, it is 2x1 less than or equals to 3x3. So what we'll do, we'll shift this x3 to the left hand side. So what would be the equation? It will be 2x1 minus 3x3 less than or equals to 0. Right? इसको मैंने बस इस साइड शिफ्ट कर दिया. So this equation is 2x1 plus 3x3 less than or equals to 0. So now you have to put values here. So it is 2. There is no x2, so 0. x3 minus 3, 0. Clear? How do we got -3? मेरा ये बेसिकली कह रहा है कि जो भी आपकी x1 की यूनिट्स आएंगी उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो वो जो भी आपकी यूनिट्स x3 उसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो वो लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब सॉरी, ये वैल्यू आपकी लेस देन और इक्वल्स टू ये वैल्यू होनी चाहिए. सो अभी मेरे पास हमारे पास क्या है, एक्चुअल में इक्वेशंस है. अगर हमारे पास वर्डिंग होती तो हमें पता होता, ऐसे होता कि ट्वाइस द number of units for product x1 should be less than thrice the number of products produced for product 3. ऐसे करके कोई स्टेटमेंट है, मतलब दिस इज वन ऑफ द कॉन्स्ट्रेंट फॉर द कंपनी कि ये कम होना चाहिए और इसकी वेटेज है 2, इसकी 3. अब मुझे अपने सॉल्वर में डालनी है. अब सॉल्वर में डालने के लिए तो मुझे सारे कोफिशिएंट्स एक साथ चाहिए ना अपने इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए सारे कॉन्स्ट्रेंट्स. सो जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा. राइट? ये यहां से यहां आएगा तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 रहेगा. Yes, ma'am. राइट? सो इट विल बी 2, इट इज -3. अब ये एक्सेल की हेडेक है कि वो कैसे वैल्यूज निकालेगा. हमने अपने कॉन्स्ट्रेंट्स को इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमने डाल दिया. नाउ वी हैव टू यूज सम प्रोडक्ट. Okay, sum product. It is asking for array 1. So array 1 is this. I'm not fixing it. And array 2 is my number of units. And I am fixing it. Right? Bracket closed. Enter. Now I can simply drag this formula. And you can randomly check that it is picking the correct values for constraint 3, for constraint 4. सबकी values बिल्कुल सही पिक कर रहा है वो. क्लियर है सबका यहाँ तक? Any doubts to anyone? Please ask. No, ma'am. No doubt. मैम जो आप कीबोर्ड से शॉर्टकट से डॉलर साइन एक बारी में डाल रहे हो मैम, वो नहीं हो रहा. F4. अपना F4 प्रेस करो. हो रहा है? ट्राई कर रहा हूँ. करो. जब आप F4 करते हो ना इक्वल्स टू ये पर्टिकुलर सेल, तो एक बार F4 करोगे आप तो दोनों में आ गया, दोबारा F4 करोगे तो रो में आ गया, एक और बारी करोगे तो खाली कॉलम में आ गया, और फिर से F4 करोगे तो सारे डॉलर्स हट जाएंगे. ऐसे करके चलता है ये. F4 दोनों में, फिर F4 एक में, फिर एक में, फिर हट जाता है. नहीं तो फंक्शन की के साथ F4 प्रेस करो.
क्योंकि मेरे लैपटॉप में मुझे फंक्शन की दबानी पड़ती है, उसके बाद मेरा F4 चलता है। ठीक है, once this is done, now we have to write our objective, that is profit maximization. So again we'll use sum product. Okay, so this is my objective. So always select the objective array here, comma units. यहाँ पे कुछ डॉलर की साइन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इस फॉर्मूला को कहीं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस एरे विद दिस एरे, सो इट विल बी सम प्रोडक्ट, एंटर 0। सबका डन है इतना? Now we'll go to data solver. So you can do reset all, क्योंकि हमारी पुरानी रेफरेंसिंग आ रही है ना, हमने पूरा रीसेट कर लिया फिर से। ठीक है, so again set objective. So my objective value is in this cell. Okay, next objective is again maximization. So select maximization by changing variable cells. So variable cells are these three values, right? Then subject to constraints. So now you have to add the constraints. So for first constraint, this, the cell referencing is then this, which is less than or equals to constraint value is this cell. This is correct. This cell is less than or equals to this cell. Add. Now next one, this cell sign is again less than equals to, this is your right hand side value, this. Again add. For the third one, this sign is again less than or equals to, so less than equals to, the constraint value is this. Add. Now the fourth value. So this is your fourth constraint. Now the sign is greater than or equals to, so we have to select this, greater than or equals to, constraint value is this. Again add. This is the fifth one. So for the fifth one, this is your referencing and the sign is again less than or equals to, constraint is this. सारी डाल दी आपने, पांचों की पांचों, आप प्रेस करो ओके, आपकी सारी इक्वेशंस आ जाएंगी 5 की 5 ऐसे। सो इन शॉर्ट सिर्फ एक ही है जिसमें ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, उसके अलावा सारी लेस देन इक्वल्स टू है। सो वो सारी आप एक गो में भी कर सकते हो, इट इज कंप्लीटली योर चॉइस। इतना हो गया सबका? Yes, ma'am. Then you have to tick this and simplex LP, solve and keep solver solution. Okay, values aa gayi. Now see, first value is less than 500, next is less than or equals to, so it is exactly equal, it is less than, so it is less than, it is 50-50, and the next, the last one 0-0. तो मेरी सारी satisfied हो गई हैं constraints और मेरी value आ गई है। Should we move to next minimization problem, or you need time to solve this? मैम गिव अस 2। मैम ये मेरा सॉल्व नहीं हो रहा, 2 मिनट रुकना। करो करो। एक बार आप फॉर्मूलाज की सारी रेफरेंसिंग देख लो, वो करेक्ट होनी चाहिए, और जब आप इक्वेशंस को ऐड कर रहे हो तो एक करेक्ट रेफरेंसिंग होनी चाहिए। फर्स्ट वाले में ये सिलेक्ट होनी चाहिए और ये सिलेक्ट होनी चाहिए, दूसरे वाले में ये दोनों, तीसरे वाले में ये दोनों, फोर्थ में ये दोनों और फिफ्थ में ये दोनों। तो एक बारी रेफरेंसिंग देख लो, ठीक है? एक बारी अपना सॉल्वर खोलो और मेरे वाले सॉल्वर से एक बारी बस रेफरेंसिंग देख लो।
यहाँ पे ऐसे आना चाहिए 15 6, जैसे मेरा आ रहा है इन ऑर्डर और ये भी इन ऑर्डर, तो अपना भी चेक कर लो, ये सब ऑर्डर में आने चाहिए, यहाँ पे रेफरेंसिंग गलत नहीं होनी चाहिए। Done? Done, ma'am. Narayan, done? Yes. Okay. Now we'll move to the next question, which is of minimization. Okay. So let's do the shortened one first. Okay, so this is the third question, and we'll copy paste the first exact format. Format हमेशा same रहेगा आपका, ठीक है? Now just delete the values. Okay, so objective, there are only two decision variables, so I have to enter the value in only two decision variables, x1 and x2. Objective is minimize, and the coefficients of the variables are 100 and 120. Okay, so these are the coefficients. Constraint 1 is 1, 1. Right hand side value is 2000. For the next one, there is only x1, so 1, no x2, and right hand side value is 200. For the third constraint, it is only x2 is there, so 0, 1, and here 400. Okay. We know that the units are 0 and 0. Okay. Then here it is minimize for say cost. Then again we'll use the sum product formula. This is my first array, comma, this is my units array, and I have to fix this unit. So F4, bracket close. Again you will drag and drop these formulas. Now just cross check it. It is picking the correct arrays. Then minimization cost, again use sum product formula. This is my first array, objective one, and the next array is my units. Okay, so I have repeated all the steps. So जल्दी से ये बनाओ, पहले अपना ये टेबल कंप्लीट करो. मैम अभी जब हम सॉल्वर यूज करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव वाली मिनिमाइज कॉस्ट ये वाली सेल डालेंगे ना? हाँ हाँ, सेम जैसे हमने मैक्सिमाइजेशन में किया था, बस हमारा ऑब्जेक्टिव इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइज हो जाएगा.
उसके बाद सेल वेल जैसे रेफरेंस करते हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे. ओके मैम. Shall we start solving it through solver? Yes, ma'am. So data, solver, now reset all. ठीक है. Now for this particular question, my objective is in this cell, that minimize cost, and now to यहाँ पे we have to select minimum, right? जैसे पुराने में हम maximum कर रहे थे, यहाँ पे हम minimum select करेंगे. So this is my objective cell and my objective is minimum. Now it is asking by changing variable cells, so this is same जो हमारे 0 0 है. Then constraints, so add constraint here. So cell referencing बिल्कुल same. ये हमारी first equation का first reference है, cell reference. हमारी equation equals to type की है, so make it at equal sign here, and the right hand side value of the constraint is then this 2000. So हमने ये cell reference कर दिया. Add for the next, it is this, and the sign is greater than or equals to. So greater than or equals to, constraint is this. Add for the third one, this is my cell reference and the sign is less than, which is fine, and constraint is this. Now all the three constraints are done, so press OK. So all my values should come like this: first equals to, greater than, less than. Again just tick this particular thing. Simplex LPK method के through we'll solve it and solve. Okay, so these are my values, that the company should produce only X1 units, that is 2000. Yes ma'am. Done. एक और क्वेश्चन कर ले जल्दी से, then you will good to go. There will not be any Yes. problem. ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं मिनिमाइजेशन का बड़ा सा. उसके बाद प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, वही फॉर्मुलेशन वाली प्रैक्टिस है जो आपको करनी है, नहीं तो मेथड इज नॉट गोइंग टू चेंज. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, इसका सेकंड वाला ले लो, कॉपी पेस्ट कर लो, उसमें x3 है ना. सो ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन का टेम्पलेट कॉपी कर लो. डिलीट दीज वैल्यूज. और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी आपके कॉन्स्ट्रेंट 3 ही है, सो 2 को डिलीट कर दो. ठीक है, तो राइट क्लिक करके डिलीट कर दो या कंट्रोल माइनस साइन कर दो, उससे भी डिलीट हो जाता है. कंट्रोल माइनस. ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव इज मिनिमाइजेशन एंड द कांस्टेंट एंड द मैम वो कोफिशिएंट. कैसे किया आपने, कंट्रोल माइनस? हाँ पहले, लेकिन आपको रो सिलेक्ट करनी पड़ेगी. रो सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल माइनस. अच्छा, ठीक है, अगर एक सेल करते हैं ना तो शायद वो पूछता है हाँ कि एंटायर रो डिलीट करनी है, एंटायर कॉलम, सेल को सिर्फ लेफ्ट में शिफ्ट करना है या अप. तो सेल में करोगे तो उसके बाद फिर यहाँ एंटायर रो करोगे, ओके, तो पूरी रो डिलीट हो जाती है. कंट्रोल माइनस. ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव इज 20,000, 25,000 and 30,000. Okay, first constraint, it is 400, 300, 400. Right hand side value is 25,000. For the next one, it is 300, 300, 600, and here it is 27,000. Next is 200, 500, 400, and it is 3,000. Again, it will be 0, 0, 0, and here we will use sum product. First array is this, comma, this array which is going to be fixed, so F4, bracket close. Now I'll drag and drop. So I'll just cross check.
it is picking the right arrays. Here it is minimize. So again I'll use sum product formula. This is objective array and this is units array. Bracket close. Okay, so this is done. Then I will again go to my data solver. I'll reset all. Set objective is this cell to minimum by changing values, these three values. Constraints add. Now see, in this particular question, it is very easy. All my cells are greater than equals to type. It is not a mixed one. So instead of adding them individually, I can select them in one go. How? In cell referencing, what I'll do, instead of selecting one cell, I'll select all these three cells. Shift down arrow. मैंने पूरे के पूरे तीनों सेल्स एक ही गो में सिलेक्ट कर लिए. उसके बाद जो मेरा साइन था ये मैंने चेंज कर दिया बिकॉज इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टाइप. कॉन्स्ट्रेंट में भी मैंने एक साथ तीनों सिलेक्ट कर लिए क्योंकि मेरा जो साइन है वो सेम है. तो अगर साइन सेम होगा तो आप एक गो में भी सब रेफरेंसेस सिलेक्ट कर सकते हो. एक्सेल समझ जाएगा कि ये इससे ज्यादा होना चाहिए, ये इससे ज्यादा होना चाहिए, ये इससे ज्यादा होना चाहिए. एक्सेल समझ जाएगा. तो इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग वन सेल यू कैन सिलेक्ट द एंटायर कॉलम टुगेदर. ठीक है, सो एक बार प्रैक्टिस कर लेना इसका बिकॉज इट सेव्स योर टाइम. ओके, नाउ आई विल सिलेक्ट जस्ट ओके. ये मेरी अपने आप एरेज आ गई है मेरी कि दिस एरे इज लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस एरे. यहाँ पे टिक रखना, सिंप्लेक्स एलपी सॉल्व. ओके, सो आई हैव गॉट माय वैल्यूज. ठीक है, एंड ऑल आर सैटिस्फाइड. All my resource used are satisfying my constraint values. So is this clear? Yes ma'am. Solver का और कोई क्लास तो नहीं लेनी ना? Done है? नहीं मैम, आप ये वाली शीट भेज दोगे एक्सेल वाली? अच्छा ठीक है, ये मैं भेज दूंगी. Let me just save this. ठीक है, I'll share with you Narayan. ठीक है? ओके. एक क्वेश्चन है हमारा ये वाला सेकंड वाला that you can practice. Although it is on same lines. Right, it is less than equals to, it is greater than, it is less than, so you know how to solve it. So only this particular question is left that you can practice. I would say at least एक question solver की practice कर लो और फिर बता देना अगर कोई doubt हो तो. ठीक है, क्योंकि एक एग्जाम में आएगा आपके प्रैक्टिकल में. मैम अभी आप क्या बोले?